Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, that is statistics. In class 9, you have studied about classification of data into ungrouped as well as grouped frequency distribution. You have also learned to represent the data pictorially by bar graph, histogram, frequency polygon, etc. ये सब आपने पढ़ा था, frequency polygon. You learned about these three pictorial representation of statistical data. Also, you learned three measures of central tendency, that was mean, median and mode. You studied finding this mean, median, mode for ungrouped data. In class 10, you are going to find mean, median, mode for grouped data. Students, now before starting with exercise, let us revise what are measures of central tendency. These are the three measures of central tendency: mean, median and mode. Why they are called as measure of central tendency? Because they represent a single value that describes the whole data. अब mean क्या है? Mean is the most popular value. Now suppose you have collected marks of students of 50, 20, 65, 80, 90, 25, 85, etc. Now mean tells, suppose somebody asked me that how is your section? आपका सेक्शन एवरेज है, अबव एवरेज है, तो मैं हर एक बच्चे के मार्क्स नहीं बताऊंगी. I will say, okay, my students get 80% marks. So that means this value is representing each and every value. तो अंदाजन हर बच्चे के 8 मार्क्स आ जाते हैं. That is told by mean. अब मीडियन क्या है? Median is that central value which divides the data into two equal halves. अगर हम डाटा को ascending या descending order में arrange करें तो middle value is called as median. Now when we say about mode is the most occurring observation. Suppose ज्यादातर बच्चों के marks 86 थे, तो I will say that maximum student got 86 marks. तो कई बार आपके पास mean appropriate value होती है जो कि उस डाटा को डिस्क्राइब करती है. In some condition, median gives us the appropriate value of the whole data, and sometimes mode gives us the appropriate value of the whole data. जैसे मार्क्स के केस में हमें मीन दे देता है वैल्यू की, अंदाजन बच्चों के मार्क्स कैसे हैं. सपोज आपके पास जब ये मोड की हम बात करें तो सपोज एक शॉपकीपर को शूज लाने हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए. एट दैट टाइम ही ब्रिंग्स दैट साइज ऑफ शूज मोर विच आर बॉट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो वो ज्यादातर वही साइज लाएगा जो ज्यादा सेल होते हैं. इन दैट केस मोड हेल्प्स अस. एंड नाउ median comes into existence when we need the middle value. For example, सैलरीज है वर्कर्स की, तो सैलरी में मीन्स मिडिल वैल्यू वाली सैलरी से ज्यादा सैलरी कितने वर्कर्स की है, मिडिल वैल्यू से कम सैलरी कितने वर्कर्स की है, ये जानना है. देन मीडियन हेल्प अस. नाउ इन क्लास 10 फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मीन. मीन आपने जनरली 9th क्लास में देख लिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इन क्लास 10 for grouped data we are going to study mean by three methods. One is direct method, second is assumed mean method, and the third one is step deviation method. ये तीन मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा. अब इसमें से जो थर्ड मेथड है, दिस वन स्टेप डेविएशन मेथड, दिस हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. ये डिलीटेड है, तो फॉर द टाइम बीइंग वी विल नॉट बी डूइंग दिस स्टेप डेविएशन मेथड. वी विल बी स्टडीइंग ओनली डायरेक्ट मेथड एंड assumed mean method. After completing the syllabus, we will do all those things which have been deleted. वो हम एक बार जरूर कर लेंगे. बट
Now we will be studying direct method and assumed mean method. Let us start with exercise 14.1 question number 1. साइमल्टेनियसली बेटा क्वेश्चंस में हम देखते रहेंगे, कहीं हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे और कहीं पर हम assumed mean method लगाएंगे. With assumed mean method, the calculation become little more easier. So you can use any method, whatever you like to use. Now students, let us start with exercise 14.1. Question number 1 says, beta keep the book along with you. First question is, a survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Beta, now let us first understand the question कि question में हमें क्या दिया हुआ है. बेटा ये number of plants है और ये number of houses है. Means there is one house which is having 0 to 2 plants. एक घर है जिसके अंदर 0 to 2 plants है, या तो उनके घर कोई plant नहीं है या एक है, और there are two houses which are having 2 to 4 plants. There is only one house which is having 4 to 6 plants, or there are 5 houses which are having 6 to 8 plants. तो हमें बताना है अंदाजन हर घर में कितने प्लांट्स हैं. दैट मीन्स अब मैं ये नहीं बताने जाऊंगी कि 12 से 14 प्लांट तो 3 घर में है, 10 से 12 प्लांट तो 2 घर में. मैं कैसे बताऊंगी डाटा? आई विल से बाय वन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि अंदाजन ऑन एन एवरेज every house is having this many numbers of plants. तो इसके करने का तरीका क्या रहेगा बेटा? हमें जो ये हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, हमारा जो आंसर होता है वो इसी डाटा में से आना चाहिए. मान लो आपका वेट से आंसर आ रहा है, सपोज आपका आंसर आ रहा है 25 प्लांट्स, तो आपको वो गलत है, बिकॉज आपका डाटा यहाँ पर है 0 से लेकर 14 तक, तो आपका आंसर भी विद इन दिस डाटा आना चाहिए. ये चीज आप ध्यान रख लीजिए. एंड द फर्स्ट मेथड इज, जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है हम उसे वेरिएबल बोलते हैं. और अब पहले तो हमारे पास अनग्रुप डाटा था, एक वैल्यू होती थी. अब इसके अंदर वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. तो हम एक नया कॉलम बनाते हैं. वी डिनोट दैट कॉलम बाय xi, वेरिएबल बोलते हैं इसे. और हम हर एक का क्लास मार्क नोट करते हैं. क्लास मार्क मीन्स मिडिल वैल्यू. तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2/2 1. दिस इज द मिडिल वैल्यू. फिर सेकेंड 2 हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 टू गेट द मिडिल वैल्यू. So 2 plus 4/2, तो 6/2 क्या आ जाएगा? 3. 4 plus 6 10/2 5. और the other method is, आप इसमें देखिए हर जगह क्लास साइज जो है वो सेम है, वो 2 का क्लास साइज है. अगर क्लास साइज सेम होता है तो आप फर्स्ट मिडिल वैल्यू निकाल के उसमें सेम क्लास साइज ऐड करते चलो. ये तब अगर क्लास साइज सेम है. अगर क्लास साइज सेम नहीं है तो आपको रिस्पेक्टिवली हर क्लास की मिडिल वैल्यू इस तरह से निकालनी है. नाउ इन दिस केस द मिडिल वैल्यू विल बी, नेक्स्ट विल बी 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, and the last value, middle value is 13. And next, this number of houses, कितने हाउसेज में ये प्लांट्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, और हम इसे डिनोट करते हैं fi से. नाउ वी विल मेक another column and that will be called as fi. बेटा देखिए मीन क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ भी हम सम कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में. देखिए 1, अब हमने इसको मिडिल वैल्यू ले लिया, तो मतलब इस ग्रुप को ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, इस ग्रुप को ये नंबर रिप्रेजेंट करता है. अब हम इसको लेके चलेंगे, तो 1 हाउस में 1 प्लांट है तो हमारे पास 1 आएगा. अब जैसे देयर आर 2 हाउसेस जिसमें 3 प्लांट्स है, तो यहाँ पर 2 हाउसेस के 3, तो 3 plus 3 प्लांट्स क्या हो गए? 6 हो गए. फिर 1 हाउस है जिसमें 5, तो +5. फिर 5 हाउसेस है जिसमें 7 प्लांट्स है, तो
मुझे 7 को 5 बार प्लस करना है क्योंकि 5 घरों में 7 प्लांट्स है, तो 7 + 7 + 7 5 टाइम्स करना है। तो हम कैलकुलेशन जल्दी और इजी करने के लिए हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं FI XI। तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को XI वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके चलते हैं और लास्ट में ऐड। तो 1 × 1 1, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 5 = 35, 9 6 = 54, 11 2 = 22, 13 3 = 39। ये हम इसको सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। काम हम वही कर रहे हैं कि जो हम मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, काम हम वही करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए दोबारा बता रही हूँ बेटा, जैसे एक घर में एक प्लांट, तो हमने एक प्लांट ऐड कर लिया, 2 घर में 3 प्लांट, तो 3 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए 3 2 = 6। एक घर में 5 प्लांट्स, तो 5 एक ही बार आएगा। 5 हाउसेज में 7 प्लांट्स, तो 5 घरों के 7 प्लांट्स ऐड करने हैं, तो 7 को हमें 5 बार ऐड करना है, इसलिए हमने 35 लिखा है। तो लाइक दिस है वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, इस सबको प्लस करने पे, और हम उसको ये सिग्मा का साइन लगाते हैं और हम इसको बोलते हैं समेशन, और हम लिखते क्या है, समेशन FI XI, क्योंकि हम इस कॉलम को ऐड कर रहे हैं। Now this on adding gives us 7 + 5 12 + 5 17 + 4 21 + 2 23, 23 + 9 32, 3 carry, 3 + 3 6 + 5 11 + 2 13 + 3 16. So 162. Now sum x bar is equal to sum of observation by total number of observation. Instead of writing this, we will write summation FI XI, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल हाउसेस हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था 20 है, और इसको हम बोलते हैं समेशन FI, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, तो हम फ्रीक्वेंसी मतलब कितने हाउसेस में वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, तो समेशन FI। नाउ दिस गिव्स अस 162 by 20. So now after this cancellation we get 28 = 160 point, फिर 2 रहेगा, 21 = 20, so 8 approximately. So there are approximately 8 plants in each house. 8 plants लिखोगे आप इसमें, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, आप इसको लिखोगे 8 प्लांट्स, क्योंकि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं हमारे पास जो आंसर है वो इसी डाटा में से आता है। हमने प्लांट्स कलेक्ट किए हैं तो आंसर भी प्लांट्स ही आएंगे, और रिमेंबर आंसर शुड लाई विद इन दिस डाटा। तो ऑन एन एवरेज ईच हाउस इज हैविंग 8 प्लांट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Find the mean daily wages of the worker of the factory by using an appropriate method. बेटा देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन था मैं उसमें भूल गई, नीचे लिखा हुआ था कि which method you are going to use and why. तो बेटा देखिए, जब वैल्यूज छोटी होती हैं, जैसे वहां पर छोटी वैल्यूज थी 8 to 10 like this, then we use direct method. This method is called as direct method. Now this question, if you feel that values are big enough कि आप ये मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग रहा है, then we go for the assumed mean method. हम इस क्वेश्चन में दोनों मेथड करेंगे so that you are able to judge which method is good for you to use. Now you can do by any method. Now बेटा ये सेकेंड कॉलम, जो थर्ड कॉलम था वो हमने FI XI का बना दिया। उससे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेली वेजेस, कि जो पर डे की वेजेस है वो कितनी है। तो देयर आर 12 वर्कर्स जिनको 100 से 120 रुपीज मिलते हैं।
देयर आर 14 वर्कर्स जिनको 120 से 140 रुपीज मिलते हैं. देयर आर 8 वर्कर्स जिनको 140 और 160 के बीच में रुपीज मिलते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड ऑन एन एवरेज हर वर्कर को कितने रुपीज एज डेली वेजेस मिलते हैं. तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, वी फाउंड द मिडिल वैल्यू. नाउ 110 प्लस 120 to 220 by 2, this gives us 110. We saw that each class interval is having the same class size. तो उसके बाद 20 प्लस करते हुए जो कि क्लास साइज था, वी गॉट ऑल द मिडिल वैल्यूज. फिर हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया FI/XI. तो 110 इंटू 12 1320, 130 इंटू 14 1820 एंड सो ऑन. फिर उसके बाद हमने समेशन FI/XI निकाला. इसका दिस केम आउट टू बी 7260. और ये कितने वर्कर्स थे, 50 वर्कर्स थे. समेशन FI क्या हो गया, 50. Then we use the direct method. This method is called direct method. Previous question में भी हमने direct method ही use किया. This is called as direct method. So summation FI/XI by summation FI. So 7260 upon 50, 0 cancel. This on dividing get rupees 145.20 means 145 rupees 20 paise is the salary of is the average salary of each worker. मतलब अंदाजन, हालांकि बेटा 12 वर्कर्स को 100 से 120 के बीच में मिलते हैं रुपीज. देयर आर 10 वर्कर्स जिनको 180 से 200 के बीच में भी मिलते हैं. बट मुझे किसी को बताना है तो मैं हर एक का डाटा नहीं दे सकती. देन आई से on an average each worker is getting rupees 145.20 as an average salary. Now let us do this question again by assumed mean method to make the calculation a bit simpler. Beta, now let us do this same question, this question number 2 by assumed mean method. इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी फाइंडिंग DI. DI मीन्स डिविएशन फ्रॉम द मीन. हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमें पता है हमारा आंसर इसमें से है, यानी कि कुछ इसमें से. तो हम इसमें से कोई एक वैल्यू वी विल कंसीडर एज कि वो मीन है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मीन है. देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एज्यूम्ड मीन. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 150 जो है वो एज्यूम्ड मीन है. मतलब कि ऑन एन एवरेज ईच पर्सन इज गेटिंग रुपीज 150. आप किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मान सकते हैं. जरूरी नहीं है कि 150 है, ज्यादातर हम मिडिल लेते हैं. आप 170 भी ले सकते हो, 130, 110, आप कोई भी एज्यूम वैल्यू ले सकते हो. उसके बाद आपने क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से ये एज्यूम्ड मीन माइनस करना है. तो डिविएट कितनी कर रही है ये वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू कितना डिविएट कर रही है वो हम वहां पर फाइंड करेंगे. तो XI माइनस K, मतलब पहले XI माइनस एज्यूम्ड मीन. तो 110 माइनस 150 तो माइनस 40 आएगा. देन 130 माइनस 150 तो माइनस 20. 150 माइनस 150 0. 170 minus 150 20. 190 minus 150 40. This column is called DI or deviation. Next we will draw one more column and that column will be named as FI/DI. इस कॉलम को हम नेम करेंगे FI/DI. अब मैंने FI/DI लिखा है तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये डिविएशन, ये हमें मल्टीप्लाई करनी है. और बेटा जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, इसको एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी में से. जब डाटा हमने वेजेस का कलेक्ट किया है तो एज्यूम्ड मीन भी वेजेस में से होना चाहिए. तो हम मिडिल क्लास वैल्यूज में से ही एज्यूम्ड मीन एज्यूम करते हैं. ओके, नाउ लेट अस do the column and make the column. Now 12 4s are 48, तो minus 480. ध्यान रहे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. देन minus 280.
then next is 8 into 0, 0, then 6 into 20, 120, then 10 into 40, 400. अब हम समेशन FI/DI निकालेंगे, समेशन FI/DI। तो हम नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड कर लेते हैं, तो -480 और -280, दिस गिव्स अस -760, और पॉजिटिव नंबर्स को अलग ऐड कर लो, तो 120 और 400, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 और 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 520। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। तो 760 में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो 760 में से हम 520 माइनस कर देंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ -240। ये चीज ध्यान रखो, बड़े नंबर का साइन यहाँ लगेगा, अगर ये नेगेटिव वाला सम बड़ा है तो -240, अगर पॉजिटिव वाला सम बड़ा होता तो प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -240। Now next we will write the formula for assumed mean method. The formula for finding mean by assumed mean method is A plus summation FI/DI by summation FI। ध्यान रहे बेटा, इसमें assumed mean ऐड होगा, so x bar is equal to A मतलब ये वाला, so A means 150 plus FI/DI क्या आया था हमारे पास -240 by summation FI means 50, तो ये हमारे पास क्या आएगा 150, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 240 by 50, तो ये 0 और 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो 150 minus 4.8 and this gives us 145.2, तो 2 को हम 20 लिखेंगे क्योंकि 20 पैसे हैं, तो ये रुपीज, तो हमारे पास क्या आया, ऑन एन एवरेज एवरी वर्कर is getting rupees 145.20 as an average salary। तो इसमें हमारे पास थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन कम हो गई, यहाँ पे हमें 12 into 11 करना पड़ रहा था, 130 into 14 करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें 14 into 20, थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपलर हो जाती है। सो यू हैव टू डिसाइड विच मेथड इज कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन में दैट यूज assumed mean method, तो फिर आपको उसी मेथड से करना है, तो आपको मेथड दोनों आने चाहिए।